Nick ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. मैम आपकी आवाज नहीं आ Ma'am, your voice is so low. रही आपकी आवाज नहीं All right. So students, I was saying that today we are going to start the new chapter, chapter number 9, rational numbers. Fine. It is on page number 173. Rational numbers. First of all, we will do the definition. Yes, Rishita, your hand is raised. You want to ask anything? Unmute and say. Yes, ma'am. बोलो. Ma'am, I have a doubt. Ma'am, वो जो हाँ बोलो. मैम जो पेज नंबर 109 है, मैम जो लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर है, उसमें मैम पेज नंबर 109 का मैम ट्राई दिस का ना लास्ट पार्ट में समझ नहीं आया. ठीक है बेटे, करवा दूंगी मैं ये वाला पार्ट भी आपको. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू मैम. later on when we will do the revision और after अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं. पहले आप उस पे ध्यान दो. मैंने नोट कर लिया, हम कर लेंगे वो क्वेश्चन. ठीक है. now students, first of all, what are rational number? So definition is written in your book. Open page number 174, underline, and this definition you have to write in your fair notebook also. पेज नंबर 174. ये जो इटैलिक्स में लिखा है, रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p over q where p and q are integers and q not equal to 0. Underline this definition. ठीक है. Now understand what it is. You have done natural numbers. Natural numbers. Natural number starts from 1. Then you have done whole numbers. Whole number starts from 0. इसके बाद आपने पढ़े integers, all the negative numbers 0 and all the positive numbers are all integers. ठीक है. Then now we are going to study rational numbers. Rational number क्या होते हैं? कहते हैं a number which can be expressed in the form of p over q, means 7 by 5, where p and q are integers. ये दोनों क्या है? Integers. And q is not equal to 0. In rational number, the denominator cannot be 0. Fine. आगे देखो एक मिनट. Suppose if we take a number minus 9 by 4. Now is it a rational number? Is minus 9 by 4 a rational number? Yes, ma'am. It is a rational number because it is represented in the form of p over q. और p और q वो क्या कहते हैं? क्या हैं? Integers हैं. Integers negative भी हो सकते हैं, positive भी हो सकते हैं. So minus 9 is an integer? Yes. 4 is an integer? Yes. So and the denominator is 4. The denominator is not 0. So this is also a rational number. ठीक है. इसका मतलब rational number क्या हो सकते हैं? Positive भी, जैसे 1 by 4, 9 by 3, 6 by 7. All these are rational number. और अगर negative लगा देंगे तब भी नेगेटिव वाले नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं. सपोज यू आर हैविंग अ नंबर 5. इज 5 अ रैशनल नंबर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now don't speak. No, ma'am. No, ma'am. Fine, beta. Now don't speak.
otherwise I'll remove that option in which you can unmute yourself. Beta 5 is a rational number. Yes, it is a rational number. क्यों? 5 है. 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 5 over 1. 5 over 1. So this is P and this is Q, and clearly the denominator is not 0. So what are rational numbers? Any number which can be represented in the form of P over Q, means numerator or denominator. ठीक है? 7 by 4, 9 by 3, 6 by 11, minus 7 by 11 and so on. All are rational number. माइनस लगा दो चाहे. 6, 9, 0, 1, 6, 9, 19, 14. These also all are rational number, क्योंकि इन सबके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1. यहां तक किसी ने कुछ पूछना है? आगे देखो. हमें क्लियर। एक बार मैम रैशनल नंबर में दोबारा से समझा दो। समझा रही हूँ बेटा, रैशनल नंबर तक से यही समझा रही हूँ. रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P over Q, और ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? इंटीजर्स. इंटीजर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इंटीजर कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो. ठीक है? बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता. ठीक है? अब देखो आगे. इफ वी टॉक अबाउट अ नंबर 0, is 0, raise your hand. Is 0 a rational number? Raise your hand. Nobody will give the answer yourself. Kanav? No, ma'am. Yes or no? Ma'am, no. Anyone else? Bhavya? Ma'am, yes, 0 is a rational number. 0 is a Can I rational tell number. the reason? Okay, 1 minute Bhavya. Bhavesh? Ma'am, no. No. अच्छा जी. Okay, Nitya? Ma'am, yes. Yes. Arjun? मैम अच्छा, अब कितने बच्चे कह रहे हैं yes, कितने बच्चे कह रहे हैं no? So the student, those who are saying yes, they are correct. 0 is a rational number. अगर बेटा अकेला नंबर 0 है, 0, इसका मतलब क्या है? आपको पता है 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑल्सो 0. अगर हमारे पास 0 जो है वो न्यूमरेटर में है तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0. 0 over 7 0, 0 over 8 0. अगर अकेला नंबर 0 है इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? 1. जैसे होल नंबर होता है 5, 5 के डिनोमिनेटर में क्या है? 1. नंबर है 9, 9 के डिनोमिनेटर में क्या है? 1. तभी हम कहते हैं ना कि ये रैशनल नंबर है. इसी तरह से अगर आपके पास 0 है तो 0 के नीचे क्या है? 1. ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0. हाँ जी बोलो. तो फिर मैम जब मैम 9 over 1 जब हमने लिखा तो फिर मैम हम वहाँ पे 0 डालते क्यों नहीं है? कुछ नहीं समझ आई अर्जुन, आपकी बात हो जाए. बोलो दोबारा. मैम जब हम यहाँ पे लिखते हैं हम 9 over 1 तो मैम अगर हम वहाँ पे अगर 0 डाल दे तो मैम हमारा गलत हो जाएगा. बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि मैम फिर 0 तो मैम रैशनल नंबर है. अरे अगर अकेला नंबर लिखा है अर्जुन, आपके पास कोई नंबर है, सपोज कोई भी नंबर ले लो 7, पूरी बात सुनो मेरी, ठीक है? अगर अकेला नंबर 7 है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1. क्योंकि 7 कोई नंबर है ना, इट इज अ नेचुरल नंबर, इट इज अ होल नंबर. सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है 7 over 0 गिवन है,
तो ये नंबर क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। मींस अगर कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो क्या हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मींस ऐसा कोई नंबर नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। बाय टेकिंग 7 over 0 वी कैन नॉट सिंप्लीफाई आवर क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? वो हमारे किसी भी सॉल्यूशन में यूज नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। ये इसका कोई सॉल्यूशन निकाला ही नहीं कभी किसी मैथमेटिशियन ने। मींस अगर कहीं भी जैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, वहां पर अगर 7/0 हो, 7/0, फिर कोई भी कैलकुलेशन हो 4/3 into 7/9, कुछ भी आगे कुछ भी मैथमेटिशियन ने कुछ करके देखा होगा, ठीक है? तो व्हाट दे हैव फाउंड कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है देन वी डोंट रीच टू एनी सॉल्यूशन। इट मींस इट इज नॉट डिफाइंड। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है? तो अगर आपके पास सिर्फ 7 नंबर है, जैसे हम बात कर रहे थे 7, तो 7 के साथ तो कैलकुलेशन करते हैं, 7 का पूरा टेबल है, 7 कहीं भी यूज हो जाए, वी डू द कैलकुलेशन। व्हाई? बिकॉज 7 मींस 7 over 1, 0 means 0 over 1, -3 means -3 over 1। बात समझ में आ गई? So all these are rational numbers because it can be represented in the form of p over q। दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। समझ आ गई बात? ठीक है? तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख देनी है और उसके बाद एग्जांपल कोई भी दे देना अपनी तरफ से, 7 over 1, -3 over 9, 6 over 4, एनी एग्जांपल यू कैन गिव। ओके? नित्या अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो हैंड लोअर कर लो। यस हरजीत। एक्सक्यूज मी मैम, आई वांट टू आस्क दैट अगर अभी आपने बताया कि डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा। If 0 will be in numerator, so we can say that it's rational number. Of course, yes. Because we know you have studied in your previous classes. I don't know you remember or not. बेटा जब भी ऐसे होता है 0/7, 0/4, 0/1, 0/8, 0 कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया इसका मतलब आंसर क्या है? 0। आंसर क्या है? 0। आंसर क्या है? 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 है, अगर आपसे पूछे एमसीक्यू में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0, 1, 0, नॉट डिफाइंड, नन, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, बिकॉज हेयर 0 इज द डिनोमिनेटर, सो इट इज नॉट डिफाइंड। अगर पूछें 1 over 0 क्या है, सॉरी 0 over 1 क्या है, 0 over 1 will be 0। Clear? Okay ma'am, thanks ma'am. So after definition, write down rational numbers। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एमसीक्यू है। Rational numbers can be positive। Rational numbers can be positive and negative। Rational numbers can be positive and negative। अर्जुन लिख नहीं रहे आप? Rational numbers can be positive and negative। Next point, a number 0 is also a rational number। A number 0 is also a rational number। ठीक है बच्चे, आगे लिखो। If 0 comes in the denominator, if 0 comes in the denominator,
if 0 comes in the denominator, then that number is not defined. If 0 comes in the denominator, then that number is not defined. Done? ठीक है, अब आगे आ जाओ, पेज नंबर 170। हाँ जी, कौन है ये? नित्या, क्या बोलना है, पूछो। मैम मैंने ना अभी कैलकुलेटर में जीरो को आपने बताया था ना कि जीरो को अब अगर हम डिनोमिनेटर में रखेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, तो वैसे ही आया था कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। तो उसने करके भी देखा, 1 डिवाइडेड बाय 0 आएगा कैन नॉट बी डिवाइडेड। वैसे नित्य मैंने कभी करके नहीं देखा, मैं भी देखूंगी। चलो गुड। पेज 174 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इज द नंबर 2 by -3 रैशनल? टेल मी, रेज योर हैंड। क्या ये रैशनल है? ओनली भव्या नोस, व्हाट अबाउट अदर्स? भव्या आप बोलोगे नहीं? यस बानी। मैम नंबर कौन सा है मैम? पेज नंबर कौन सा है? 1 मिनट। अर्जुन क्या बात है? म्यूट करो खुद को। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 174 बच्चे। यस बानी। Yes, ma'am. Rational Yes or no? both the numerator and denominator. यस मैम, यस। अर्जुन 1 मिनट। हाँ जी बानी, इज इट रैशनल और नॉट? यस और नो? Yes, ma'am. यस, फाइन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, और वो दोनों क्या होते हैं? इंटीजर। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। जरूरी नहीं कि माइनस साइन न्यूमिनेटर में लिखें, माइनस साइन डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। तो यस इट इज आप इस बुक में लिख लो, इज द नंबर 2 over -3 रैशनल? यस। आगे लिखा है लिस्ट 10 रैशनल नंबर्स, कोई भी लिख दो, 0 1 2 3, जरूरी नहीं है। अगर आपसे 10 रैशनल नंबर पूछे तो आप ऐसे लिखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल आर रैशनल नंबर्स। डिनोमिनेटर में कुछ डालना है डाल दो, नहीं डालना ना डालो, बिकॉज अ सिंपल होल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? आगे आ जाओ। 175 पेज पे ये फिल इन द बॉक्सेस हैं, ये आपने पहले भी कर रखे हैं, ये खुद करोगे। दिस यू विल डू योरसेल्फ। यस भावेश बोलो। मैम आंसर क्लिक कर रहा हूँ। आंसर नहीं पूछ रही बेटा मैं अभी, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, यू आर गोइंग टू डू दिस फिल अप्स योरसेल्फ। उसके बाद वाले ट्राई दीज पे आ जाओ। इज 5 अ पॉजिटिव रैशनल नंबर? नीचे वाला राइट साइड पे, यस बुक में लिख लो, यस। लिस्ट 5 मोर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो ये मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कोई भी रैशनल नंबर लगाओ, बस पॉजिटिव, माइनस साइन नहीं लगाना, तो दे आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते होते पेपर में, ये तो सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इज -8 अ नेगेटिव रैशनल नंबर? पेज नंबर 176 टर्न करो पेज। Yes, ma'am. Yes, of course, yes. List 5 more Yes, negative ma'am. rational number. अगर सबके साथ माइनस लगा देंगे तो ये माइनस रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी में नहीं करना आपने, जस्ट डू इन द बुक ओनली। फाइन, डू इट लेटर और नॉट नाउ। यस कनक बोलो बोलो। मैम अभी 174 पेज नंबर पे वो करवाए वो 10 रैशनल नंबर, तो मैम उसमें हम माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। 174, हाँ लगा सकते हो, लगा सकते हो। क्योंकि उन्होंने ये नहीं ना बोला पॉजिटिव बताओ या नेगेटिव बताओ, उन्होंने बोला कोई भी 10 रैशनल नंबर, तो चाहे नेगेटिव लिखो चाहे पॉजिटिव लिखो, आपकी मर्जी है।
ठीक है बेटे, आगे देखो। आगे सीधा करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म, पेज नंबर 178, स्टैंडर्ड फॉर्म। यू पीपल हैव डन लोएस्ट फॉर्म इन योर Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो। Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो, आगे बोलो। एक्सक्यूज मी के बाद आगे बोल दिया करो अपनी बात। मैम मैंने कहना था मैम, जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं मैम, उसमें वो न्यूमिनेटर में नेगेटिव का साइन होना चाहिए कि मैम डिनोमिनेटर में? जहां मर्जी, जहां Okay, मर्जी, ma'am. बट वही करवाने लगी हूँ, अभी वही करवाने लगी हूँ। ठीक है, एक अभी आकृति आपकी बात सुनती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अभी हम क्या करने लगे हैं, राइट डाउन, गिव द हेडिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म -18/45, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है लोएस्ट फॉर्म। पहले 3 6 are 18, 3 15 are 3 2 are 3 5 are. Standard form is -2/5। ठीक है, सपोज आपके पास ऐसे नंबर होता 4/-16 और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आप क्या करोगे, 4 1 are 4, 4 4 are 16। स्टैंडर्ड फॉर्म इज, जब रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होती है तो ये जो नेगेटिव साइन होता है ये हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, न्यूमरेटर में, -1/4। ठीक है, तो अगर आपसे नेगेटिव रैशनल नंबर पूछे हैं तो माइनस, चाहे आप नीचे लगाओ, चाहे डिनोमिनेटर में चाहे न्यूमरेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर लगा ही रहे हो तो हमेशा आइडियली हमें न्यूमरेटर के साथ लगाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। बट फिर भी अगर आप डिनोमिनेटर में लगाकर लिखते हो कोई नंबर को, 3/-7 इज अ रैशनल नंबर, देन दैट आल्सो डजंट गो रॉन्ग। बट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा हो और उसमें नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में रहने दोगे, वहां नंबर कटेंगे। ठीक है, यस कृष्णा बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम अगर हम मैम पेपर में स्टैंडर्ड फॉर्म में मैम अगर मिक्स फ्रैक्शन वाला आया मैम रेशनल नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कोई बात नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो। कोई नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो, तब भी कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा। करना ही क्यों मिक्स्ड फ्रैक्शन में, रहने दो इम्प्रॉपर में। ओके मैम। कर भी दोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेटा पेज नंबर 178 पे सेकंड पार्ट है, वो खुद करोगे, करो अभी। -12/18 करो, चलो शाबाश। मैम कौन सा पार्ट है? बेटा पेज 178 सबसे नीचे जो ट्राई दीज हैं उसका सेकंड पार्ट। इसमें इसका आंसर -6/9 आएगा मैम, सेकंड पार्ट का। देखो -6/9, 6/9 भी तो -2/3 मैम, मैम -2/3 -2/3। ठीक है, ओके फाइन बेटा, म्यूट करो। -2/3, जैसे 6/9 भी तो आगे 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मींस जब तक ऊपर और नीचे वाला नंबर डिवाइड होता है किसी एक टेबल पे, उसको कट करना है। फाइन, 6/9 कर दोगे तो नंबर कटेंगे, क्योंकि 6/9 फर्दर इट इज डिविजिबल बाय 3। अब आगे बेटा चलो, पेज नंबर 181, पेज नंबर 181 पे ये जो लास्ट वाला ट्राई दीज है ना, ये पहले क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, उसके बाद करेंगे कि 2 रैशनल नंबर है उनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, ये बाद में करेंगे।
पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े सिंपल वाले वो करवा के फिर वी विल कम बैक टू दिस। ओके ठीक है? मैम। ओके यस। ओके बेटा। सो एवरीवन कम टू एक्सरसाइज 9.1। ये देखो पहले ही क्वेश्चन है वो। चलो लेट्स डू। देखो बच्चे, माइनस, पहले फोर्थ पार्ट करेंगे। -1/2 and 2/3। These are two rational numbers। हमने इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने? 5। What is the method? Everyone stop writing. Nobody will write. Just listen to me. What is the method? In order to find the rational numbers between two rational numbers, first of all, we have to make the denominator same. अर्जुन जी, किससे बातें कर रहे हो अर्जुन? अब आपकी वीडियो ऑन है तो फिर आप मुझे दिख रहे हो। जो बच्चे ऑफ करके बैठे हैं वो पता नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। अब तूने ऑन की हुई है तो ध्यान क्लास की तरफ होना चाहिए जरा। ठीक है, चलो। व्हाट आई वाज सेइंग कि डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है? सेम। एंड हाउ टू मेक द डिनोमिनेटर सेम? बाय टेकिंग द एलसीएम। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। बोर्ड पे देखो, लिखना नहीं है अभी। हम क्या करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से 3 डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में नहीं किया। नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी। एंड 2/3 को 6 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से। व्हाट वी गेट? -3/6 and 4/6. Now the denominator are same. When the denominator are same, then you have to compare the numerators. बोर्ड पे देखेंगे, zero, 1, 2, 3, 4. Now when we are comparing numerators, how many numbers are between -3 and 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 नंबर्स हैं, तो उनमें से कोई भी 5 या 6 के 6 आप लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे 5 rational numbers between these two. Obviously ऐसे लिखोगे 5 rational number between above 2। ये पूरा हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप एक्स्ट्रा होमवर्क क्वेश्चंस करोगे, सिंपल ऐसे भी एक बार लिख दिया ऐसे, फिर हर बार बिटवीन अबव लिखने की बजाय सीधा लिखो 5 रैशनल नंबर्स आर, व्हिच विल बी द रैशनल नंबर्स। यहाँ लिखने लगी हूँ। -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6। मींस डिनोमिनेटर साथ में चलता जाएगा, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके जो बीच वाले न्यूमरेटर्स हैं वो लिख देने हैं। दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स। यस कनव? मैम आपने जो नंबर लाइन बनाई है ये हमने शो करनी है कि नहीं, कुछ समझाने नहीं करना आपने बेटा, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। ओके वरना आप अपने लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इन क्वेश्चंस में क्या होती है कि जब आपने बीच वाले रैशनल नंबर्स लिखने हैं
तो बीच वाले ही लिखने हैं। गलती से ये नहीं करना कि इसके इधर वाले लिख दिए या उसके उधर वाले लिख दिए, फिर इस पूरे स्टेप्स का भी कोई नंबर नहीं है। अगर आंसर गलत है इस क्वेश्चन में तो सारा इसका क्रॉस लग जाएगा। यस आकृति, सुन नहीं रहा आकृति बेटा, दोबारा बोलो। नो ऑडियो आकृति, मैसेज एंड आस्क, ठीक है, वो फोन कर लेना या मैसेज पे पूछ लेना बेटा, ऑडियो नहीं आ रही आपकी। यस कृष्णा, एक्सक्यूज मी मैम। मैम अगर मैम हम ये नंबर लाइन नहीं शो करेंगे तो मैम पता कैसे लगेगा कि बीच वाले नंबर कौन से हैं? ये तो सोचना है ना बेटे, पता क्यों नहीं चलता, दिमाग लगाओ। नहीं सोचना तो नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन मैंने ये थोड़ी कहा है कि नंबर लाइन नहीं बनानी ही नहीं, बना लो आप। मुझे एक और पार्ट करवाने दो नित्या, 2 मिनट फिर बात करूंगी। आई होप यू एवरीवन हैज नोटेड। नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट। -4/5 and -2/3. Again we can see the denominators are different, so we will make the denominator same. What is the LCM? LCM of 5 and 3 is 15. So -4/5 into 3, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, so we will multiply the numerator also with 3. -2/3 into 5. So numerator also will get multiplied with 5. What we get? -12/15 and -10/15. Now look on the board please everyone. Time is about to over. ये समझो. Now you can see the denominator are same. Now we have to compare the numerator. चलते चलते ये -10 है, ये -11 और ये -12, ऐसे ही होता है ना नंबर लाइन, 0 से चलते -10, -11, -12। जब हमने न्यूमरेटर्स को कंपेयर किया तो हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि -10 और -12 के बीच में तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, -11। बट हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? What we will do? We will multiply numerator and denominator by 10. ये क्या बनेगा? 120/150 and -100/150. 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो 0 0 0 लग जाएगी। डिनोमिनेटर अभी भी सेम है। अब आप देख सकते हो, अगर अब आप नंबर लाइन बनाकर इसे देखने की जरूरत नहीं है। -100, इधर देखो, -100 और -120 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, -101, -102, so on up to -119, है ना? आते हैं ना? तो आप लिखोगे 5 rational numbers are -101/150. Write down, hurry up better, time is over, bell has gone. एक्सक्यूज मी मैम, हमने इन दोनों नंबर्स को -12/5 और मैम -10/15 को मैम किसी और नंबर से या 3 से नहीं? भाभी आप एक स्पीड में बोले जा रहे हो, दोबारा बोल चल। मैम ये जो 2 नंबर्स हैं -12/5 और मैम -10/15, तो मैम अगर हम इनको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हो, बट द कंडीशन इज द डिनोमिनेटर शुड बी सेम। आप इसको 4 से भी कर सकते हो, 15 4 या 60, है ना? तो लेकिन करना ही क्यों है किसी और नंबर से? सीधा 10 से करो, बात खत्म हो गई। ओके मैम। 10 से करो, 0 0 लगाना पड़ता, कोई प्रोडक्ट नहीं करना पड़ता।
ठीक है, कर सकते हो, बट कंडीशन इज डिनोमिनेटर शुड बी सेम। ये नहीं कि इसको 3 से कर दिया उसको 4 से कर दिया, वो नहीं। ठीक है बेटे, मैम दोनों को सेम नंबर से। हाँ मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो अगर आप 4 से कर रहे हो तो 12 को भी 4 से करोगे, -10 को भी 4 से करोगे, 15 को भी 50, बट करना क्यों है भैया? अगर न्यूमरेटर्स में डिफरेंस कम है तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई करो ना। ओके। चलो नेक्स्ट क्लास के बच्चे एंटर हो गए हैं। आई हैव टू लीव द क्लास, होमवर्क आई विल सेंड यू, विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है बेटा, टेक केयर।